Hello, good evening, everyone. Hello, good evening. Am I audible? आवाज आ रही है आपको? Hello. 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 Give me You 1 can- minute. You can hear. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Yes. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है साथी राधिकाना में। हेलो, वेलकम वेलकम निर्मला। सॉरी फॉर डिले। यस यस यस, सॉरी फॉर डिले, देयर वाज सम नेटवर्क इशू। No problem. साथी राधिकाना में आज हमारे साथ गेस्ट हैं निर्मला कांत सुकरवाला, जो कि काफी सारी मोडालिटीज हैं इनके पास। तो निर्मला, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड There's nothing much to say, Rajesh ji. I think you know me well. So as I'm a transformational coach who transforms people inside out, and I've been in the industry of glamour for a very long time now. Right. And after that, my transition to spirituality took place over a period of years. So now what I do is I do a lot of makeovers and image consultancy outside, like the way we need it, and inside, where our inner work is concerned, spirituality and meditation and all of this. How you define in and out? that is surprise for everyone. Yes. In and out. What is the in and out? Yes. In out को आप एक्सप्लेन करिए। और निर्मला, इसके पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करूँ। ये हमारा जो प्रोग्राम है साथी राह दिखाना, तकरीबन 3 महीने से चालू है, और एवरीडे हम मिलते थे, बट अभी हमने थ्राइस अ वीक कर दिया है। ओके। सो इसका मेन उद्देश्य था कि लोगों को बहुत सारा स्ट्रेस, एंजाइटी ये पैंडेमिक में होता था, तो 1 घंटा हम लोगों ने टाइम ऐसा कुछ स्पेंड करने के लिए जस्ट एक चिट चैट सेशन रखा कि आप दुनिया से दूर होके कुछ तो सीखिए, यू हैव टू लर्न समथिंग। और जो भी अलग अलग एक्सपर्ट्स थे, काफी सारे एक्सपर्ट्स आए, फिल्म के कलाकार, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट, डॉक्टर, सब अलग अलग फील्ड के लोग आए, और 1 घंटा उनके साथ में उनकी स्किल्स को सीखते हैं, उनके जो अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और जो भी तकलीफें हैं दिन भर की, 24 घंटे में से 1 घंटा जो है वो अपने लिए निकालिए, एंड कुछ हम सीख पाए। तो इसके लिए साथी राह दिखाना ये प्रोग्राम हमने 3 महीने से शुरू किया, और इसमें आज आप हमारे साथ में कुछ शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज कंटिन्यू। Thank you so much. I think we were discussing about जब हम offline बात कर रहे थे, तो we were speaking about mental health. Right. So the only opening line that I would love to say is life is a process. It's not a goal. Okay. So enjoy what we have done today, Rajesh, is made our life a goal. You know, कि ये करना है, वो करना है, वो उसके अंदर हम जीना भूल गए. We've actually stopped living. We've stopped loving ourselves. We have stopped living happily. So don't make life के अंदर goals are very important, but don't make life as a goal. You know, क्योंकि ये करना है, वो करना है, and then what happens? There are a lot of people who come to me as for counseling, and then they'll say we have mental health issues. It is such a big thing when you say, it's a mental health issue. Now, we really need to understand what mental health means. Right. You know, what is the definition of our mental health? Our mental health includes psychological, emotional, and social well-being. Okay. Now, if these above factors directly
affect our the way we feel, the way we act, and the way we think, right? ये तीनों चीजें अपने को directly affect करती हैं if any of this is imbalanced in us. Like अगर emotionally if we are not in sync with ourselves, definitely we feel it. Feel करने से then we get the stress, anxiety, and then we are depressed, and it's become a social quotient nowadays. पता है मुझे tension है, दूसरा बोलता है अरे तुझे तो कोई tension नहीं है, I have more tension than you. So actually it's become like a social norm कि everybody has to, and iske andar when the life goes and then when we slip into depression, it's not only about adults slipping into depression. It's also about today's youth, today's children who are in their teens who get depressed for no reason at all, because they hear these big words like stress, anxiety with their parents, or their parents are speaking to somebody, and it बहुत आसान होता है इन बच्चों को pick up करना ये सब चीजें. So the best way, if you go to see Rajesh, I have also said a lot of things in I have a YouTube channel. और YouTube channel में भी मैंने बोला हुआ है कि the best way to live is the holistic way. Holistic self-care बहुत important है for your mental well-being. Right. Holistic means, if you see, I'm going to explain it in the most short way I know. Holistic is if you cut the words or if you break the words, holistic means whole. Whole, say the first word is derived. Okay, Right. that holistic is derived from whole. Self means ourself, and care means taking care of our actions, words, and thoughts. How we take care of our actions, words, and thoughts is very important. So there are like 5 holistic way of self-care. पहले तो आता है physical. Physically, how we take care of ourselves: exercising, dieting, taking good care of our body, meditating. Our body is the one who will tell us the first signs. Ki mera, if my knee pain is not overnight. Shoulder pain is not overnight. It is a process. And the body intimates us कि ये problem है, and then हमको काम खत्म करना होता है तो we push it कि कुछ problem नहीं है, थोड़ा और फिर जब वहां आके पहुंचते हैं कि we cannot walk, then is the time we get stressed. We just delay और जब extreme नहीं होता है तब तक realization नहीं होता है, जब तक हमारा सब्र का बांध टूट नहीं जाए तब तक उसके बाद हम समझते नहीं. तो निर्मला, एक क्वेश्चन और भी था. आज के जमाने में जब लोग को मेंटल हेल्थ की बात होती है, बिकॉज एवरीवन इज कंसर्न अबाउट मेंटल हेल्थ, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी टॉक्स हो रहे हैं मेंटल हेल्थ, मतलब हर कोई मेंटल हेल्थ पे बात कर रहा है. तो जब मेंटल हेल्थ की बात हम करते हैं तो पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स कि मेंटल हेल्थ मतलब पागल होना है, या मेंटल हेल्थ को डिफाइन कैसे करें. बात तो करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं. और एक लेटेस्ट डेटा जो अभी है, इंडिया का डेटा मैं बात कर रहा हूँ, ये अनऑफिशियल डेटा है. अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो उसमें से एक जो बंदा है उसको डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है. मतलब 25% लोग अभी मॉडरेट से सीवियर के केस पे जा चुके हैं. तो अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हर घर में है तो लोग उसको एड्रेस करना या एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है. तो मेंटल हेल्थ का जो टैबू है, ये कैसे हम लोगों तक मैसेज पहुंचा सकेंगे कि नहीं, मेंटल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ है. More, very important. Yes. From our mind, we create problems and then it goes to the physical self. True. Mental health is actually very important. And what you said, आपने जो बोला वो right है, कि people think it's a taboo, going to a counselor or taking their children to a counselor, it's like a taboo. But we need to understand, जब तक we do not talk about it, things will not be resolved. There is no way we can catch hold of people and say, आपको mental problem है, आप, you need help. Because they are also in a denial mode. वो denial mode में रहते हैं. अभी आप मेरे पास आएंगे और आप मुझे बोलेंगे कि आपको mental problem है, मैं बोलूंगी आप पागल हो, I'm तो okay. So we need to realize that this has to be done by the person who is suffering.
he has to have that realization कि mental health का problem उसको है या stress का problem है या anxiety का problem है, तो he needs to realize कि वो कैसे accept करे. Like किसी की मॉम आती है मेरे पास और बोलती है पता है मेरे बेटे को मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, बट अगर बेटा इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, आई कैन नॉट ट्रीट दैट पर्सन. सो टू टॉक अबाउट इट एंड मे बी वी एज पीपल कैन ये ऐसे सब करके ऑनलाइन सेशंस करके मे बी दैट विल हेल्प. Because aware basically. I don't think medicines and all these things help a lot in this. Very true, very true. Acceptance is important. Right. बट इसमें आप लाइफस्टाइल का दोष देते हैं या क्या रीजंस है इसमें मेंटल हेल्थ बढ़ने के? अगर हम लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें तो राजेश जी, लाइफस्टाइल डिजीज यानी क्या? लाइफस्टाइल डिजीज डायबिटीज, ये एक नया इज अ न्यू टर्म, लाइफस्टाइल डिजीज. ओके, लाइफस्टाइल डिजीज मतलब इसको एक अलग कैटेगरी दी गई है कि लाइफस्टाइल डिजीज में बहुत सारी चीजें भी आ रही है और अभी नई तरीके की प्रॉब्लम्स आने वाली है, जबकि हम जब सोशली लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, मतलब हमारी दुनिया जो है वो स्क्रीन टाइम पे सिमट गई है, तो इसमें हम बाहर नहीं जा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, तो आपके जो इमोशनल गेटवेज थे जो वो अब नहीं होने की वजह से लोगों में अब और बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारा इश्यूज, नई तरीके की प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि अभी घर पे वर्क फ्रॉम होम भी है, पढ़ाई भी घर पे हो रही है, सब कोई घर पे ही है, तो अभी आपका घर ही वर्क प्लेस भी है और आपका घर ही रिक्रिएशन सेंटर भी है. तो उस केस में, हाँ, उस केस में जो आपका मेंटल की बात करें, फिजिकल की बात करें, आप कुछ भी एक्शंस आपके लिमिटेड हो गए. देयर आर लिमिटेड एक्शंस कि आपको घर की चार दीवारी में करनी है, बाहर आप जा नहीं सकते हैं. तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए कि हम इसको कैसे एड्रेस करें. Now what पहले तो रियलाइज, फर्स्ट तो वी हैव टू रियलाइज कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है. हाँ जी, प्रॉब्लम्स जैसे ही ये स्टार्ट होती है, वी नीड टू रियलाइज कि देयर आर so many different resources जो अपने पास है, which we need to use. अब रिलेशनशिप को ले लो, घर में हम सब इकट्ठे बैठे हुए, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इतने लोग इकट्ठे घर में बैठे हुए, एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट. ओके, तो जब हम इंटरैक्ट करते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू स्पीक फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव बट नॉट जज अनदर पर्सन. ये हमारे अंदर क्वालिटी बन गई है कि हम एक दूसरे को जज करेंगे. वी विल नॉट एक्सेप्ट द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, or we will somehow or the other start giving our opinion in such a manner ki that person either rebellious ho jata hai ya start ho jate hai. So we need to understand that when we are together, we don't have to judge each other, and we should just start talking from a point of view of our aspect and not expect things from others. ये expectations बहुत हो जाते हैं जब हम घर पे बैठते हैं, तो बहुत expectations हो जाते हैं. We say कि she is not working, I am working, so she should cook and I should not be cooking. The only thing we can do is live in harmony, and when we live in harmony, the only thing that we need to do is be adjusting, not compromise. There is a difference between compromising and adjusting. So if we adjust our ways towards each other, I am sure there will be a better quality relationship with each other. So and the different resources जो मिलते हैं, like somebody likes to cook, अगर उनको काम नहीं हो, there are people who don't have any work because of COVID, and that is why they come sometimes and say, Irmila, I am stressed, मुझे काम नहीं है, मेरा काम चला गया. So there can be something else that you have in you which can be explored by you. Maybe it is cooking abilities, maybe it is stitching, maybe it is art, painting. So you need to keep yourself busy so you are well fit in that atmosphere at home, and you don't feel lonely, and you don't start getting irritated with each other. जब हमको करना कुछ नहीं होता है ना, जब हम सिर्फ टीवी सर्व करते हैं, that is the time when we all start getting irritated. Yes. So if we have something to do, दूसरा रिसोर्स होता है, प्लान बी सबके पास होता है.
True, true. You're so You have busy. to explore. You have to realize कि हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं. और हाँ, टीवी भी जो देखें तो कोई भी इंफॉर्मेटिव चैनल्स देखें और मतलब ऐसा कुछ नहीं देखें कि ऑलवेज जो टेंशन एंजाइटी और बढ़ जाए. तो टीवी में और बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें डिस्कवरी चैनल्स हैं, हिस्ट्री चैनल्स हैं, इंफॉर्मेटिव चैनल्स भी हैं. तो आप टॉक शोज देखने के अलावा और बहुत अच्छी चीजें भी देख सकते हैं. टीवी हाँ, but देखना बंद नहीं करें, टीवी का जो चैनल है वो चेंज कर दें, वो अच्छी चीजें देखें जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टीवी देखने का कि लोगों ने टीवी अपने घर से निकाल दिया. अभी नया ये है कि लोगों ने टीवी रखना बंद कर दिया, आप तो टीवी देखते ही नहीं है. तो मैं तो बोलता हूँ कि टीवी डेफिनेटली देखिए, बट चैनल चेंज करिए. आपको हंगामे वाले सीरियल या न्यूज मत देखिए कि इतने मरे और इतने घायल हुए, वो नहीं देखना है. कुछ अच्छी चीजें भी आती है टीवी पे. true. And ये क्या करता है, the especially the news channel keeps Yes. on repeating, Yes, repeating. yes. All this, the fighting, the उससे politics and yes. you know, sitting at home we get COVID. तो Yes. तो कहाँ स्टार्ट होता है राजेश जी? सब माइंड से स्टार्ट होता है. Very true. Very अपना true. माइंड ठीक हो, अपने फिजिकल बॉडी भी ठीक रहती Very है. true. It is all related to the mind. Very true. Yeah. चलिए, So we काफी सारे ऑडियंस भी हैं, तो ऑडियंस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं. तो इरमला के साथ में ये पावर पैक सेशन होने वाला है और शी इज वेरी एनर्जेटिक. मतलब जब आप डिस्कशन करते हैं तो एकदम माहौल में एकदम एनर्जी आ जाती है. अदरवाइज बहुत लो हैं, अभी लोग बहुत हैं. किसी का जॉब के लिए हैं, स्कूल्स के लिए प्रॉब्लम्स हैं, हाउसवाइफ के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं. मतलब ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स आ गई भी कोविड की वजह से. लोग उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं. जैसे आपने बिल्कुल सही किया कि आपके अंदर क्या टैलेंट्स हैं. आप आर्ट्स करिए, आप कुकिंग करिए, जो भी कुछ कर सकते हैं एडिशनल. यू हैव टू थिंक कि हम क्रिएटिव क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या और भी एडिशनल क्वालिटीज हैं. बट क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते. I mean, बाहर नहीं you जा सकते. understand there अगर हमको भी जाना हो, True. you know, cannot True. go because everything opened outside. Very true. इसमें restrictions है, and we अगर खुदा ना खास्ता this goes on for a longer time, then it's going to be more you know, frustrating. There Very are true. कितने सारे relationships इस COVID में have actually, you know, broken up. The people have started understanding कि नहीं, this I can't get along with my husband, or I can't get along with my spouse, Very true. or my partner. You know, then it becomes very difficult. So that is that compatibility is very important in a relationship. But if you're just, I mean, you know, you need to adjust, you not compromise. There is a बहुत fine line होती है compromise में और adjusting में. Compromise हम तब करते हैं जब it is against our ethics, against our character, against our respect. We are compromising with our partner, spouse या जो भी हो. But if we are adjust तो हम winter में भी गर्म कपड़े पहन लेते हैं. आएंगे और हम स्वेटर पहन के बैठेंगे तो it's going to be difficult. मीटिंग चालू है. Which suit the that type of कॉम्प्रोमाइज में कहीं ना कहीं से हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं. वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ. we are pleasing others. When हम Okay. compromise करते हैं हम दूसरों को please करते हैं. बट हम अपने आप को सप्रेस करते हैं. वी आर सप्रेसिंग तो we need to our adjust. intention. Yes. जब adjust करेंगे we will realize कि everything becomes very easy. जब हम Very true. compromise करते हैं तो हम खुद को इतना तकलीफ देते हैं. That is the time when the relationship comes to a peak and we cannot take Very it true. anymore. Very So true. don't compromise in any situation or a relationship. Adjust in it. If you can, do it, because these are the times we need each other. We cannot, मैं अकेला रह सकता. Of course we can stay alone. But if we have a family together and it is not very difficult, adjust your way. थोड़ा सा adjustment तो हर एक चीज होता है, हर एक चीज में. I think that's the best way to live together right now. with social distancing, physical distancing. हाँ, साथ में रहना है लेकिन social distancing हो रहा है. हाँ, साथ में रहना है बट स्टिल सोशल डिस्टेंसिंग, डिस्टेंस मेंटेन करना है. अब हाँ, मेंटल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मेंटल क्लोजनेस होनी चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए. तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी कि लोग एक्चुअली क्लोज हो गए हैं, घर की चार दीवारी में बंद हो गए और उसके बाद में उनको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है. तो वो एक बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी इफेक्ट हो रहा है. बट अभी तो शायद लोगों को आदत भी पड़ गई है, ऐसा लग रहा है अभी 1.5-2 साल में. पीपल आर मोर कंफर्टेबल. और ये क्रिएटिविटी जो थी ना, फर्स्ट लॉकडाउन में काफी क्रिएटिविटी थी. सारे लोग कुकिंग करते थे और आपके जो वेबिनार्स थे ना, काफी सारा कुकिंग और ये सब चीजें होती थी फर्स्ट लॉकडाउन में. बट अब धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो रही है. अभी वो शिफ्ट हो गया दूसरी तरफ.
True. तो We are अदरवाइज आपको याद है शुरू में जो काफी कुछ लोग गाना गाते थे, कुछ ऐसा मतलब पूरे कॉलोनी में गाना होता था, इस तरह की चीजें होती थी फर्स्ट लॉकडाउन में, है ना। अच्छा, लोग एक दूसरे के छत पे, ऐसे बहुत सारे हमारे पास में फिल्म वाले लोग हैं काफी सारे, वो पूरी बालकनी में शाम को गाना गाते थे, कुछ शायरी करते थे, कहानी बताते थे, कुछ भी स्टोरी टेलिंग, काफी सारी चीजें थी। इवन अच्छा। कुकिंग के तो बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे थे कि सब लोग अपने घर पे कुछ ना कुछ बना रहे हैं। So I have seen men have started cooking so beautifully, better than women. So we all are exploring our resources. We all are. We all have an innate ability to do something. आप में भी कुछ है, मेरे में भी कुछ है, बस एक्सप्लोर करना और do not come in each other. Yes, darling. Do not put your do not put your opinion so authoritatively that the True. other people around you in your house are. Very You need to respect. If you are living together with someone, you need to respect their views as well. तभी जाके harmony में रह सकते हैं. So we all Very need to understand that, Rajesh ji. It's important. बहुत बढ़िया। और मेंबर्स काफी सारे लोग हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली अपने व्यूज रखिए, कुछ क्वेश्चंस रखिए, किसी भी चीज पे हम बात कर सकें। और जो भी नए लोग हैं प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं और आप कहाँ से हैं। तो सुरेश चंद जी हैं, वो हमारे साथ रेगुलर होते हैं। और भी जो भी नए मेंबर्स हैं प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नसीम Myself, Suresh Chandra Jain, Jaipur से, यस यस Analytic and Signature Analyst. यस यस। और सुरेश जी भी रेगुलर होते हैं। और हमारे साथ हैं हमारी आज गेस्ट जो हैं निर्मला कांत सूत्रवाला, जो कि बहुत डायनामिक स्पीकर हैं और बहुत सारी चीजों पे वो काफी सारी चीजों की एक्सपर्टीज है इनके पास में। और आपने अपनी और भी एक्सपर्टीज बताई नहीं निर्मला, तो आप थोड़ा सा बताएं और आप क्या क्या करते हैं अदर देन ट्रांसफॉर्मेशनल। महावास्तु करती हूँ and animal communication. I speak to the animals. A lot of other things. Tarot, angels. तो बहुत सारी चीजें करती हूँ। निर्मला, मुझे एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में पूछना था कि इसके साथ में आप क्या करते हैं, मतलब आप पक्षियों से बात करते हैं या एनिमल से बात करते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। राजेश जी, this is intuitive. ये क्वालिटी जो कम्युनिकेशन की है with the animals, nature, it is intuitive. It is inborn in you, in every one of us. So we have to explore it. अभी मैंने explore किया because I love being with animals. I love nature. But it all happens intuitively. अगर हम देखा जाए तो we just have to, connect to our inner self. And intuitively हम बात कर सकते हैं, and you will realize कि they answer us also, not by speaking, but ये सारे so पुराने जमाने में ऐसी बातें उल्लेख मिलता है कि वो पक्षियों की भाषा समझ लेते थे और बातचीत होती थी। ऐसा बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हम अलग अलग चिड़ियों से बात करते थे, कुछ खतरे की कुछ बातें होती थी तो वो बता देते थे। तो इसमें कितनी सच्चाई थी, मतलब उनके एक्सप्रेशन को समझते थे या एक्चुअली कम्युनिकेट करते थे? कम्युनिकेट करते थे, लाइक द वे, हाँ, वो टेलीपैथिक जैसा होता है, क्यों बोलते हैं एनिमल कम्युनिकेशन। सो यू एंड मी आल्सो कैन कम्युनिकेट टेलीपैथिकली। कभी-कभी होता है फोन उठाती हूँ और बोलती हूँ, अरे राजेश जी आप ही को मैं फोन लगाने वाली थी। राइट। तो you understand, it's the same thing. But we have to trust our intuition, Rajesh ji, क्योंकि कभी क्या होता है, people keep saying कि अरे ये होता भी है, अगर faith या आपने खाली इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया, ऐसा फोन करने वाले भी थे। नहीं, कई बार ऐसे होते कि नहीं, जस्ट आपको फोन करने वाले थे तो आपने जस्ट ऐसा खाली बोल दिया, बट इसके पीछे डेफिनेटली लॉजिक्स है कि आपको वो इंट्यूशंस होते हैं, आप किसी को याद करते हो, वो आपके घर में आता है, उसका फोन आता है। So everything is connected basically, सारी चीजें कनेक्ट है, सारे वाइब्रेशंस कनेक्ट है, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स हैं एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में, या यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, there are certain vibrations। और इम्पोर्टेंट हम जो फिर वो मैनिफेस्टेशन होता है, जो हम सोचते हैं वो होता है, इसीलिए हम बोलते हैं अच्छा सोचो, what we think yes, positive, very that's how we work, right? अगर हम सोचेंगे कि मेरा बेटा कहीं जा रहा है या मेरी बेटी कहीं जा रही है और उसका एक्सीडेंट होगा, कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं और वो हो, so उससे अच्छा think properly, talk properly, should show that you are good.
So Very yes, intuitions Okay. are important. हमारे साथ नसीम जी हैं। नसीम जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, आप म्यूट पे हैं। Yeah, यस, I'm Naseem Jafrani and Okay. हाँ, इरमला को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड इनकी जितनी चीजें हैं इसकी वजह से आई मीन इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर मी टोटली। जी, वो पूरा लाइफ आप- मतलब बोलता है कि सोच आप के कहाँ जैसे से हैं हम लोग नसीम? बात करें। यूर फ्रॉम जी। दिस सिटी? आप कहाँ से हैं? मैं पूना से ही हूँ। अच्छा, पूना से हैं। ओके। और जी। इरमला बॉम्बे दोनों जगह पे हैं इरमला, और इरमला काफी ट्रैवल करती हैं बहुत जी। जगह पे, लोगों की लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स, वेबिनार्स और बहुत हाँ। कुछ चीजें करती हैं। इनके पास जी में हाँ। जब तो भी आप अगर इनसे मिलिए तो 2-3 मोडालिटी इनके पास में ऐड ऑन हो जाती है कि अभी और कुछ नया कर रहे हैं और कुछ नया। नहीं, यस, नहीं। तो तो इरमला ही ने मुझे इंट्रोड्यूस किया ये इन सब चीजों से एंड सोच इंसान की किस तरह बदल सकती है, इसने मुझे ये सिखाया। और बहुत आई मीन इट्स अमेजिंग। आई मीन इरमला का खुद का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है वेरी ट्रू। या और उसके बाद फिर उससे इतना ज्यादा मैं इन्फ्लुएंस हो गई थी कि आई वांटेड टू नो कि ये क्या हुआ तेरे साथ। आई मीन व्हाट मेड यू चेंज सो मच, यू नो। आई वाज सो हैप्पी टू सी हर, यू नो, चेंज। एंड देन ग्रेजुअली व्हेन हम लोग बातें करने लगे एंड यू नो वी इंटरेक्टेड एंड ऑल दैट, वो बिल्कुल ग्रेजुअल हुआ, यू नो। और it's a beautiful transformation. I mean, you start loving yourself. And that was, I think, very important in life. If you love your own self, you can love everybody else. वेरी ट्रू। जी। एंड वो फिर आपकी पर्सनालिटी में दिखने लगता है जब आप दुनिया से लव करते हैं ना, तो फिर चीजें दिखती है। और दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी एज में, किसी भी स्टेज पे हो सकता है। कई बार होते हैं चीजें कि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, अभी मैंने सब कुछ कर लिया। There is no age. There is no age बेसिकली, कि आप किसी भी चीज को Absolutely. सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई एज फैक्टर नहीं है। बिकॉज ये एक तरह की सोच होती है कि अब हमको क्या करना है। मतलब दिस इज वेरी नॉर्मल कि अब हम क्या सीखेंगे, अब हम क्या चेंज होंगे। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस है ना, ये थॉट प्रोसेस चेंज करना चाहिए। मतलब यू कैन, राजेश जी, देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक चीज, सॉरी टू इंटरप्ट। फर्स्ट चीज होती है रियलाइज करना। राइट। You know, first is realizing. If you Right. realize that you need to change, or there Right. is something which you can change about yourself, or Right. you wish to change, so realization of a fact is very important. Very And true. then to accept it. Acceptance. जी, तो acceptance अगर आप में आ Acceptance then जाता है, implementation also. हाँ जी, ये कई बार सारा किसी कुछ का स्टेप, हाँ, वो मैं पूरा इरमला की स्टेप है। कई जबान बार बोल होता रही हूँ। है कई बार एक्सेप्टेंस हो जाता है, ठीक है, लेकिन मुझे अभी रियलाइजेशन है, एक्सेप्टेंस है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हाँ ठीक है, जी, बिल्कुल, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन के बाद में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो वो सब exactly. सारी चीजें। अच्छा, दूसरी चीजें हैं कि ये चीज सिखाने वाला जो है ना, हम इसमें दोष नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ फ्लॉज था कि वी आर क्लेमिंग आवरसेल्फ एज ए एडवांस स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं, बट ये सिखाने वाला कई बार कुछ नहीं मिल पाता है कि हम कहाँ पे रियलाइजेशन करें, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। अभी हाँ, यस प्लीज। Sorry, I beg to disagree. Because सीखने वाला जो होता है ना, वो सिखाने वाले पर नहीं होता। Very सीखने true. वाला का खुद का वो होता है, वो होता है, चाहे वो मूवी देख रहा हो, चाहे Very वो true. बोर्डिंग देख रहा हो, चाहे वो कोई कहीं किताब की कोई क्लास, you just pick up, you grasp. Totally Because agree. you have the motivation to learn, you want to know something. तो वो कोई Very भी true. जुमला कहीं भी एक पकड़ लेता है और कहता है अरे हाँ यार। तो that is when acceptance होता है। उसके बाद then Very you start receiving these things from anywhere. Very true. इसमें जी, नसीम आपकी बात से मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ, जी। बट ये क्या हो, I think राजेश is disconnected. हाँ, okay. सॉरी, देयर वाज सम नेटवर्क इशू। ओके, जी, ये जो चीज होती है ना, आप जो बोल रहे हो, डेफिनेटली सीखने वाले के भी अंदर ये चीजें होनी चाहिए,
बट हम ओवरऑल अगर पॉपुलेशन की बात करें, हम हम्म। एक स्टेज पे अगर आ जाते हैं ना जहां पे हमको रियलाइजेशन होता है, थोड़ा सा भी एक क्लिक होता है, फिर हम उस लेयर पे चले जाते हैं कि मुझे सीखना है। हम ओवरऑल पॉपुलेशन के बाद जो ट्रिगर पॉइंट होता है, कई बार ट्रिगर पॉइंट मिसिंग है ट्रू। कि मुझे सीखना चाहिए, और एक टाइम पे अगर रियलाइजेशन आपको हो जाता है कि यहाँ पे सीखना है, देन फिर आप ग्रो करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। राइट। अभी एक्चुअली जो सिचुएशन है, ये मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ इरमला, कि अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन एज है, ये जो डिजास्टर है, ये हिस्ट्री का, दुनिया का हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर है, बिकॉज हर 100 साल में प्रॉब्लम्स हुई है। कोविड की प्रॉब्लम नई नहीं है, हर 125 साल 110 साल में प्रॉब्लम्स हुई है। आप हिस्ट्री देखेंगे, हर 100 साल में महामारी आई है, लाखों लोग, करोड़ों लोग मरे हैं, या पूरी हिस्ट्री में चलता है 100 साल में एक महामारी आती है। बस अभी का जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो एज है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन हो गई है। अभी जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स जो आ चुकी है, जो आने वाली है, उस टाइम पे बहुत सारी भुखमरी, अकाल, तूफान, बहुत चीजें हुई, ठीक है। उस टाइम पे मैसेज कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं होता था। अभी का जो होगा, इसमें आपको रियलाइजेशन बहुत करना पड़ेगा, है ना, आपको समझना बहुत पड़ेगा, बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में अमेरिका में कुछ ऐसा कुछ हो गया जो कि यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, तो पैनिक बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। तो रियलाइजेशन जो बोलते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन, हम अपने आप को सीखें, समझें, उसके लिए टाइम होना चाहिए, आपको थोड़ा सा एक शांति से समझ में आए। और अभी जो है ना, आपका कॉग्निटिव प्रोसेस है, बहुत फास्ट चल रहा है, फटाफट फटाफट, ये न्यूज, ये न्यूज, ये न्यूज, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। एक वायरस आ रहा था, अभी 15 वायरस अभी लाइन से हैं, ये आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, थर्ड, फोर्थ, तो आपको एक्सेप्ट करने का भी टाइम नहीं है, बिकॉज यू आर सो मच पैक्ड विद इंफॉर्मेशन। सो इंट्रोस्पेक्शन, इरमला, मैं आपके पास अभी आ रहा हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन हम कब करें, मेरे पास टाइम हो तब तो, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, एक वेबिनार खत्म हुआ, दूसरा वेबिनार चालू है, दूसरी मीटिंग है, दूसरा फोन है, राजेश, रियलाइजेशन के लिए राजेश we जी, have to, introspection नहीं, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए हमको टाइम नहीं लगता है। टाइम नहीं लगता। ओके, मैं वही पूछना, वो ट्रिक्स आपके समझना चाहता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन कैसे करें। We need to realize that we Right. need to sit in silence at least for 10 minutes a day. तो Okay. इंट्रोस्पेक्शन तभी होगा जब हम खुद 10 मिनट आपके पास नहीं है बैठने के लिए, खुद के लिए, तो फिर what exactly are you doing? तो your ये mental, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन दिल पे हाथ रख के जितने लोग देख रहे हैं, लाखों करोड़ों भी, उसके लिए आपको- नहीं राजेश जी, आप I एक- didn't agree to this, क्योंकि नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन 10 मिनट की बात बोल रहा हूँ मैं, 5 मिनट। अभी हाइपर एक्टिविटी की अगर आप बात देख रहे हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपकी बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, 10 मिनट बोल रहा हूँ। नसीम जी, आप भी मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। हम फोन लेके सोते हैं, हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, फोन लेके रात को सोते हैं, उठते भी हैं फोन लेके, तो वही तो, that is the प्रॉब्लम है। हाँ, यस, that is the entire thing Yes. we need to break. Yes. अगर हमको mental health की हम बात कर रहे हैं, तो we need to understand that is the routine we need to break. सुबह उठ के पहले मोबाइल देखना जरूरी नहीं होता है, कोई वर्ल्ड कुछ कहीं नहीं जा रहा है। That is the realization I'm talking about and Naseem is speaking about. क्योंकि अगर आपको, अगर 10 मिनट में 10 कॉल्स आ रहे हैं, you have to be, you are not at all mentally stable then what is the point? फिर तो ये सब होना ही है, anxiety, depression, then that is a way of living. And आपने मुझे क्या बोला at the beginning of the seminar, you say it's become a lifestyle. Yes, क्योंकि हम, we are taking it upon us. अभी you your hand on and you tell me आपके पास 10 मिनट नहीं है खुद के लिए, खाना नहीं खाते हो, ब्रीद नहीं करते हो। You need to understand, अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहना है, फिजिकल हेल्थ ठीक रहना है, you need to take out 10 minutes. You cannot give a story कि मेरे पास 10 मिनट नहीं है. It's not possible. So we are talking hypothetically कि नहीं हो रहा है, not possible. अभी जिम का ले लो. If anybody says अरे जिम जाओ, nobody will say I can go to the gym. अगर पैसे भरेंगे तो जिम जाएंगे. Understand? क्योंकि उन्होंने पैसे भरे हुए हैं. And they need to go. And there are people after that also पैसे भर के भी जिम नहीं जाते because they don't make an effort. You need to make an effort. ऐसे बोल ही नहीं सकते. Otherwise, your mental health is anyway not going to do well. So if you're talking about mental health issues, you cannot say that I cannot take out time. You need to take out time. Maybe how you take out time is your issue. Next mental health issues आएंगे. Understand? So there is a way of living, Rajesh ji. Okay.
वेरी ट्रू, एंड वी नीड टू गो थ्रू दैट वे ऑफ लिविंग। ऐसे नहीं है कि मैं बहुत बिजी हूँ, कोई टाटा बिरला है नहीं, और टाटा बिरला को भी 10 मिनट मिलते हैं। Okay to take up 10 minutes. And once वो करना start कर दिया ना, then you cannot live without it. Then you Very make it, then it becomes a habit. Then you want to do it. फिर ऐसे नहीं होता कि मैं नहीं कर सकता हूँ या मेरे पास टाइम नहीं, फिर वो नहीं किया तो then we feel बेचैन हो जाते हैं कि बाबा हमने किया क्यों नहीं आज। We are not feeling well, we are not fresh because we didn't have that 10 minutes of silence. अगर हम silence में नहीं बैठेंगे, we will never realize that what we are saying, what we need to be to ourselves. हमारे inner self को touch करना जरूरी है। और mental health तभी ठीक होगा when we are aware कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमको क्या फील हो रही है। We are breathing in and out every day, पर हमको ये भी नहीं पता कि ये ब्रेथ कैसे ले रहे हैं, हाउ आर वी ब्रीदिंग, हाउ आर वी टॉकिंग, एंड टू हु आर वी स्पीकिंग, हाउ रूटली वी आर टॉकिंग। कभी कभी हम जब जवाब दे देते हैं एंड देन लेटर ऑन वी थिंक, तो उससे ज्यादा अभी हम सोच के जवाब देना। वी नीड टू अंडरस्टैंड, और वो अगर हमको इनर सेल्फ को टच करना है और अवेयर होना है, माइंडफुल होना है, तो वी नीड टू बी इन साइलेंस, वी नीड टू नो व्हाट वी आर डूइंग। उसके लिए तो आई थिंक 10-15 मिनट सभी के पास हो, और अगर नहीं होते तो then that is stress and anxiety. Then we have no other go, there is no way. अगर आपने टैबलेट्स भी लिए तो भी it's not going to help. You understand? इसमें एक क्वेश्चन है निर्मला कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता। किसी ऑडियंस का क्वेश्चन है, तो हम क्या करें, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? शी इज हाउसवाइफ बेसिकली। ओके, तो सोशल मीडिया पे क्वेश्चन है कि हाउसवाइफ है लेकिन अभी इतना कुछ उधेड़ बुन लगी रहती है, तो कैसे करें, हम अपने लिए टाइम कैसे निकालें, या हम कैसे इंट्रोस्पेक्ट भी करें? इज देयर एनी कुछ ऐसा कुछ एक्सरसाइज है कि हम अपने लिए, घर का काम भी होता है, बच्चों के लिए भी स्कूल का पूरा सब कुछ होता है, तो भी हम कैसे अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करें? अगर हम काम कर रहे हो, okay, even if we are cooking, I always, my mentor always tells me, meditation वो नहीं होता जो हम ध्यान लगा के बैठते हैं। meditation वो होता है जो हम कुछ भी करते हैं, anything, we are fully aware of what we are doing, we are in it। तो हम खाना भी बना रहे हैं तो भी प्यार से बनाना जरूरी है, फुल प्यार से बनाओ, आराम से सब्जी काटो, ऐसे नहीं कि and then we are stressed। तो अगर अपने को टाइम चाहिए, एंड इफ यू आर अ हाउसवाइफ, यू आर गोइंग टू कुक, यू आर गोइंग टू क्लीन, अगर हम डस्टिंग भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा की डस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। बी अवेयर कि मैं क्या डस्ट कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग स्लोली करो, पर जो भी कर रहे हो ध्यान लगाकर, थोड़ा बी इन द हियर एंड द नाउ इज इम्पोर्टेंट। पास्ट में लेना, अभी जब मैंने आपसे बात की, अब मैं बात कर रही हूँ, वो भी पास्ट हो गया है। एक सेकंड, एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगता पास्ट होने के लिए, राइट? और फ्यूचर, टू थिंक ऑफ फ्यूचर इज यूजलेस, तो टू थिंक ऑफ द पास्ट और फ्यूचर इज यूजलेस। तो बी इन द हियर एंड द नाउ, और फिर अपना काम करो, वो ही अपना मेडिटेशन होता है। एंड व्हेन यू आर अवेयर कि हम सब्जी ऐसे काट रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही स्लोली काटो, मैं ये बोल रही हूँ कि ध्यान लगाकर काटो। अगर हम कुछ बना रहे तो ध्यान लगाकर, वो ही मेडिटेशन होता है। तो दैट इज अवेयरनेस, दैट इज बीइंग माइंडफुल। वो ही आपको ये तरीके में, दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज विच ऑल द हाउसवाइफ्स कैन डू, एंड आई हैव प्रैक्टिस्ड इट माई सेल्फ। क्योंकि मैं मेरी मेंटोर को देखती हूँ, वो जब कॉफी बनाती है, नसीम नोज, व्हेन शी मेक्स कॉफी आल्सो शी इज सो फोकस्ड, और वो फोकस पे कॉफी इतनी अच्छी बनती है कि हम सब उसके पास कॉफी पीने जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो important is, and she's so calm and cool, तो उसको 10 मिनट निकालना जरूरी नहीं है। You understand? And I have inculcated that कि मैं देखकर काम करती हूँ। तो जब हम देखकर काम करते हैं या हम सोचकर माइंडफुलनेस से काम करते हैं, वही अपना मेडिटेशन हो जाता है। Just be aware. बी अवेयर, खाना बनाना कॉन्सेंट्रेट, जो भी कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, प्यार से करिए, बने माइंड फुली इन्वॉल्व हो जाए जो भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका ध्यान कहीं और नहीं हो, और that is meditation. हाँ जी। So you need to be mindful in whatever you're doing. You need to be aware. अगर हम अवेयरनेस से काम करें ना राजेश जी, तो हम बात भी अवेयरनेस से करेंगे, वो अपना एक हैबिट बन जाता है कि ये अवेयर है।
कि मेरे को ऐसे बात इनसे करनी है, फिर हम पागलों जैसे बात नहीं करते या गुस्सा नहीं करते। यू नीड टू बी अवेयर कि वेरी हम किससे क्या बात कर रहे हैं, कहाँ कैसे बिहेव करना है। सो वेरी ट्रू। हमारे साथ विनीता भी हैं। हाय विनीता, हाउ आर यू? विनीता, आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं? और जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। और अपने बारे में बताएं आप क्या करते हैं। और यस विनीता, शेयर 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 सम। Hello, I'm from Pune only. I know Okay. Irma well. As Naseem, I've also seen her transformation. Okay. I'm really, really happy about it, and I've learned a lot from her. And incidentally, for some part, we have the same mentor. So, Okay. यस ग्रेट ग्रेट। और जितने लोग भी यहाँ पे नए फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमारा जो ये सेशन साथी राह दिखाना है, ये एवरीडे मीन्स मंडे वेडनेसडे फ्राइडे थ्राइस अ वीक हम लोग 4 से 5 करते हैं। तो अलग अलग स्पीकर्स होते हैं, तो डेफिनेटली प्लीज आप आइए, इसी लिंक पे हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। और निर्मला और भी लोगों को आप लाते हैं, तो जस्ट हम कुछ भी लाइफ के बारे में बात करते हैं, कुछ जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी चीजें शेयर करते हैं। और जस्ट एक दूसरे को कनेक्ट करिए, कुछ शेयर करिए। और जैसा आपने बताया, जो भी आप काम कर रहे हैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर करें, चाहे वो डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं है। किसी भी टॉपिक पे हम लोगों ने इसको स्टार्ट ही किया था कि हम लोग कुछ शेयर करें और अच्छी चीज करें, अच्छी बातें करें। आप फुली इन्वॉल्व होकर करेंगे तो डेफिनेटली आप सीखेंगे, और 1 घंटा जो है वो आपके लाइफ में कहीं पे भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसमें हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप किसी भी एरिया में वो ट्रांसफॉर्म होती है चीजें। तो जैसे मैंने आपको बोला कि टीवी देखना है, टीवी का मोड आप सीरियल देखना चेंज करिए, कोई इन्फॉर्मेटिव देखिए। इसलिए जो स्क्रीन टाइम मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, वेबिनार जो देख रहे हैं, वो अच्छा वाला कोई वेबिनार से लोगों से मिलेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो दुनिया बहुत छोटी हो जाएगी। और अब पता नहीं कौन किसके काम में आ जाए। सो कनेक्ट करें, बात करें। इसलिए 1 घंटा ये साथी राह दिखाना, हाथ बढ़ाना नहीं होता है। साथी हाथ बढ़ाना आपने सुना था, तो हाथ अब नहीं बढ़ा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग में। तो साथी राह दिखाना, कि जिसको आप हाथ नहीं दिखा सकते, अगर उसको आपने रास्ता दिखा दिया, तो उसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। किसी को आपने रास्ता दिखाया, क्योंकि आप किसी को हेल्प एक बार कर सकते हैं, बट अगर आपने गाइड कर दिया उसको, तो वो ऑटो मोड में वो हमेशा अपनी चीजें खुद से करता चला जाएगा। तो दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस साथी राह दिखाना। और इरमला है हमारे साथ में, डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग अच्छी बातों पे। तो और कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस पूछें। पल्लवी हैं और हमारे साथ और रेगुलर लोग हैं, इंद्रप्रीत, सपना, राधिका एंड सुरेश जी हैं। तो क्वेश्चंस पूछने के बाद में हम इरमना आपसे पूछना चाहेंगे कि हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज लें जिसमें हमारे लाइफ में थोड़ा सा कुछ, अगर इंट्रोस्पेक्शन की बात करें, माइंडफुलनेस की बात करें, तो क्या एक्सरसाइज ऐसा है कि जो हर लोग कर सकते हैं, या एज स्पेसिफिक कर सकते हैं, या अपने आप को कैसे हम थोड़ा सा कूल डाउन करें, फोकस करें? द ओनली थिंग अभी जो हम कर सकते हैं, आपके पास अगर 10 मिनट हो तो जी। वी कैन हमें हमारे जो आईज आर देयर, वी नीड टू क्लोज आवर आईज, वी नीड टू Okay. सिट। पहले हम खुद को कनेक्ट किए, then only will we be able to understand what we Okay. can do outside. क्योंकि जब हम close your eyes अभी 2 मिनट के लिए and you just sit Okay. and be focus on your breath for 2 seconds also, you get a very different vibe, Rajesh ji. You feel Okay. very So हम लोग energetic. सब लोग कर सकते हैं अभी। चलिए अभी आप गाइड करिए, सो वी कैन स्टार्ट। हाँ, हाँ, यस। you तो just क्या need कर, to ओके, क्लोज योर आईज, यस। relax your mind, close your eyes, and the only focus that we need to do is on our breath, the warmth of our breath in and out. कहीं भी अपने बॉडी में अगर आपको टेंशन लग रहा हो, तो वो पार्ट पर जाके उसको रिलीज करें। शोल्डर्स टाइट हो गए हो, आईज टाइट हो गए हो, उसके मसल्स, जॉ मसल्स, release the tension from that part of your body or your face. Concentrate on your breath.
Let all your thoughts, जो भी आपके thoughts हैं, आने दो. उनको निकालने की कोशिश नहीं करनी. Let it come, let it go. Calm your body completely. हर एक सेल, आपका हाथ, आपके पैर, शोल्डर्स, रिलैक्स करना, एक एक मसल को रिलैक्स करना. आपकी ब्रेथ पे ध्यान देना. And as your muscles are relaxed, you will feel the calmness in you. और जब आप रेडी हो, आपके पाम्स को रब करके आपके आईज पे लगाकर you can open your eyes. वाओ, रिफ्रेशिंग. कैसा लगा आप सबको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा. बहुत अच्छा लगा. कुछ लोग तो नींद में भी ऐसी नींद आ जाती है अच्छी सी, हाँ, एकदम रिलैक्स. जब आप इरफान, एक चीज, जब आप जब कोई भी अगर इस तरीके का गाइड होता है, बोलता है, तो आई थिंक ऐसा बहुत, मतलब आपकी स्पीच, आपका म्यूजिक भी बहुत काउंट करता है. जैसे भी आप अगर जाते हैं ना कहीं पे भी, सूदिंग म्यूजिक होता है और एकदम से रिलैक्स हो जाते हो आप 3-4 सेकंड में. हाँ जी. और इतना प्यार से बोलते हैं ना, कूल डाउन, तो एकदम आप एकदम सेटल हो जाते हो एक्चुअली. तो ये बहुत राजेश जी, हम ये एवरीडे करेंगे 10 मिनट के लिए. अभी तो हमने 5 मिनट के लिए भी बहुत बढ़िया. तो हम लोगों की एवरीडे की मीटिंग होती है, हम डेफिनेटली उसमें आपको बुलाने वाले हैं. और वो आपका स्टार्टिंग में अगर कराऊं, और मुझे तो लगता है कि जैसे स्कूल्स में जैसे हम राष्ट्रगान करते हैं, तो इस तरह की कुछ एक्सरसाइज अगर हो, अगर इस तरह की कुछ प्रैक्टिसेस हो, तो बच्चों को इतना टेंशन जो हो रहा है, जो क्योंकि अननेसेसरी प्रेशर की वजह से बहुत सारी चैलेंजेस इसमें, थोड़ा सा रिलैक्स होने के साथ में उनकी लाइफस्टाइल या उनका जो प्रोडक्टिविटी है बहुत बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ सकता है. एग्जैक्टली राजेश जी, इसीलिए बोला था 10 मिनट काफी होते हैं खुद को ग्राउंड करने के लिए और खुद के साथ इनर पीस करने के लिए. फिर जाके हमारा जो स्पीच है, वाणी है, वो भी यू कैन सी वी डू नॉट गेट हाइपर व्हेन वी टॉक. हमारा ऑटोमेटिकली जो व्हेन द वे वी टॉक आल्सो बिकम्स सॉफ्ट, क्योंकि हम अंदर से इनर पीस हो जाते हैं. वी आर इन पीस विद आवरसेल्फ. So it is important for us to understand कि 10 मिनट निकालना जरूरी है और फिर वो लाइफस्टाइल बन जाता है. और ये सुबह करना अच्छा है या शाम को करें या जब भी टाइम मिले इंट्रोस्पेक्शन के लिए? एवरी आवर में अगर आपने 5 मिनट निकाला, लाइक 11 से 12 के बीच में 5 मिनट, 12 से 1 के बीच में 5 मिनट, ऐसे कंटिन्यूसली 3-4 घंटे भी किए तो भी अपना 10-15 मिनट हो जाता है. So you don't need to sit continuously. 5-5 मिनट का गैप, 5-5 मिनट हर घंटे किया तो भी ठीक रहेगा. फिर then you get used to it after 6-7 days. Very true. So that is easier for housewives, I think, people who are working, who don't have time. Very true. है ना? और थोड़ा सा टिप्स अगर आप बच्चों को और प्रोफेशनल्स को भी दें. प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं जो कि अभी वर्क फ्रॉम होम जिनके लिए कंपलसरी हो गया है, जो लोग ऑफिस जा नहीं सकते हैं. और मेल्स की अगर हम बात करें कि वो उनको लोगों से मिलना जरूरी था, लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम की वजह से सारा कुछ घर में ही करना पड़ रहा है, तो वो लोग फिर अपने आप को कैसे मेंटली कैसे फिट रखें? फिजिकली तो काफी सारी चीजें कर रहे हैं, बट मेंटली तो फिट. मैंने आपको पहले ही बताया कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर हमारा टेम्पर भी लूज कर रहे हैं या हमें ट्रिगर कर रहा है, तो हमको पहले जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या हमको ट्रिगर कर रहा है. व्हाट इज इट दैट इज गेटिंग अस ट्रिगर्ड? ये ट्रिगर किस चीज का है? इट इज इम्पोर्टेंट राजेश जी, क्योंकि
अगर हम हर एक चीज पे गुस्सा होने लगे तो we will never find out what is the reason we are getting angry. Right. So first thing we need to be aware is what is the reason that we are getting angry. उसके लिए to be aware, to be mindful. Mindful यानी अगर हम जो भी अगर आपने मुझे अभी चिल्लाया, okay, you shout at me now. My reaction to you will be spontaneous. Maybe I will shout back. Okay, but if I am aware of what I am doing and what is the reason you are shouting at me, or is it important for me to retaliate in this manner? अगर मैं वो थोड़ा 2 सेकंड सोचकर फिर जवाब दूं, तो I will not get into this anxiety attack या shouting, screaming. फिर screaming के बाद anger और फिर उसके बाद palpitations, right? So working people, if they understand कि how to deal with your colleagues या people around you, कोई चिल्ला रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है. You can just mute your mute button and tell him 2 minutes बच्चा, don't shout, I'm on a call. Otherwise I see so many people, they will pick up the phone, they will start shouting, मैं call पे हूँ, समझता नहीं, and that is what gets you hyper. So very small thing is, the only thing that we can do is be in the here and the now, in the present, and be aware कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों irritate हो रहे हैं. और उसके लिए थोड़ा सा अगर एवरीडे ये मेडिटेशन करे, सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड करे, जो हमको मिला है, थैंक यू बोले टू द अबव, या जिसको भी आप whoever you feel, your guru, your mother, your father, sit in that one place. 10 मिनट फोन को उठाना नहीं as soon as you get up, and just be with yourself. बहुत सारे चेंजेस 7 दिन में नजर आएंगे, पर ये करना जरूरी है. That is the only tip that will make बहुत easy है, कर सकते हैं, and it's not कि ध्यान देना है 1-1, 2-2 घंटे तो अच्छे हो जाएंगे. No, to make your mental state better, the only thing you need to do is be mindful, meditate, and be 10 minutes with yourself in a day. That is all you need. Okay. And you will see the changes slowly in 7 days, 21 days. फिर एक lifestyle बन जाता है. निर्मला, एक क्वेश्चन, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सबके लिए, मतलब मेल से भी आया है, फीमेल से भी आया है कि एक तो बच्चे सुनते नहीं है हमारी बात. ये फीमेल का भी बोलना है कि बच्चे सुनते नहीं है, हस्बैंड सुनता नहीं है, या वाइफ सुनती नहीं है, बच्चे नहीं सुनते, और अभी घर पे रहना है. मतलब मेजर प्रॉब्लम क्या है, पहले अगर कोई सुनता नहीं था तो हम घर से बाहर चले जाते थे, बच्चे को बाहर खेलने भेज देते थे. अभी प्रॉब्लम है कि अभी एडजस्ट करना पड़ रहा है या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, जो आप बता रहे हो. तो इसमें ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स है कि बच्चा सुनता नहीं है, मतलब कब स्कूल खुलेगा और बच्चे को स्कूल जाना पड़ेगा. लोग फेडअप हो चुके हैं अभी कि बच्चा, मतलब जिस बच्चे को स्कूल जाना अभी अच्छा नहीं लगता था, अब बच्चा कब सोचता है कि स्कूल में चला जाऊं, कब स्कूल खुले. तो ये बंधन से, जो पिंजड़े में रहने की जो आजादी अभी चाहिए लोगों को, तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है ये कि बच्चा सुनता नहीं है, हस्बैंड सुनता नहीं. अच्छा, इसमें रियलिटी क्या है, हस्बैंड के भी अपने चैलेंजेस बढ़ गए हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेके, जॉब को लेके, बहुत सारी चीजें, प्रॉब्लम्स हैं. तो उस टाइम पे कैसे कंट्रोल करें अपने आप को? घूम फिर के हम वहीं पर आ रहे हैं, वहीं पे आ गए. हाँ, तो उसके लिए कुछ टिप्स आपसे टिप्स, ऑडियंस टिप्स जानना चाहती कि हम कुछ ऐसा करें, हम जो शांत हम रह नहीं पाते हैं, 2 मिनट में बैठते हैं तो फिर कुछ एंजाइटी हो जाती है. ठीक है, बच्चा चिल्लाता है कुछ. ये अब मैंने जो स्टार्ट किया था, राइट, अब होलिस्टिक सेल्फ केयर करना जरूरी. एक तो मैंने आप बोला फिजिकल इज इम्पोर्टेंट, एस्पेक्ट इन आवर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिकल एस्पेक्ट यानी फूड, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीजें तो करनी है, ठीक है. नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट. इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट यानी हंगर फॉर नॉलेज. मेरे पास कोई आता है, आई थिंक अ मंथ और 2 बैक कोई आया था, एंड ही इज लाइक, मुझे ये शास्त्र आता है, मुझे वो शास्त्र आता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैंने ये पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ है. So I told him, what is it that you want मेरे पास से? He said, I am confused. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं. तो I told him, I said, आपने ये जो सीखा है ना, you stop learning more and more and more. You apply this to your daily. तो लोग क्या करते हैं, घर में स्पिरिचुअल बुक्स बहुत पढ़े हुए हैं, वो पढ़ेंगे पर उनको अप्लाई करने को आता नहीं है. तो अप्लाई. इंटेलेक्चुअल हंगर इज इम्पोर्टेंट. सीखना जरूरी है, पर कब स्टॉप करना, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी चेक भी इम्पोर्टेंट है. डाइट करना इम्पोर्टेंट है, पर क्या खाना क्या नहीं खाना भी इम्पोर्टेंट है. सो अगर हम
इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है। इमोशनल एस्पेक्ट यानी टॉक्सिक एनर्जीज, नेगेटिविटी। अब कुछ करने को है नहीं, सास बहू बैठ के बातें कर रहे हैं, इसका वो उसका वो उसका वो। फ्रेंड्स जैसे आपने बोला बैल्कनी में बैठ के वो दूसरे की बातें कर रहे हैं। It is not important. We need to understand, is this important in our life? Do something productive. नहीं किया तो भी बैठो खुद के साथ, अगर कुछ नहीं तो पढ़ो और वो Right. अप्लाई करो खुद की जिंदगी पे। True. We are very free today. There are mothers who are saying, when are the children going to go to school? But उनको पता True. नहीं, जब वो स्कूल जाते हैं then these people say, हमको हमारे बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता। So True. spend that all those things, whatever you want to do, बैठ के उनसे बातें करो। क्योंकि बस 2-3 दिन पहले मैं कहीं गई थी एंड वन ऑफ माय, आई वाज सिटिंग विद अ फ्रेंड, और वो फ्रेंड के जो कैफे है उसके बाजू में एक टेबल पे एक औरत बैठी थी उसकी छोटी बच्ची के साथ। वो बच्ची आई थिंक मस्ट बी 3-4 years old। अब उसको आया पिज्जा, वो पिज्जा खा नहीं रही है, तो उसने, उसकी माँ ने फोन लिया, उसको फोन थमाया, कार्टून देखो, पिज्जा खा। यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन। अब वो ही हो गया है बच्चा, तो फिर अब बच्चा बड़ा हो गया है तो वो लेकर बैठा है फोन, तो फिर भी प्रॉब्लम। वो सुनता नहीं है क्योंकि वो फोन पे है। बट you all have given this habit when Yes, you all are feeding the children। ठीक है, Yes. टीवी ऑन है, टीवी देख देख के खा रहे हैं, टीवी हाँ। देखो, कार्टून खाओ, ये कार्टून देखकर खाना खाओ। does not happen like that। तो अगर पेरेंट्स they are talking about children are not listening, there has to be some issue ना with the parenting। तो True, कहीं true. nobody wants to take the blame, you know, they will say no 100%. हम तो अच्छे हैं, but there has to be something। so you need to understand yourself कि मैं कहाँ गलत हो रही हूँ। हस्बैंड नहीं सुन Very रहा है, true. there has to be some, you know, your expectations। हम expect करते हैं, दो we say we don't expect anything but we still expect the husband to come and smile। वो expectation हो गई। so don't, अगर आप smile कर रहे हो, उसको नहीं smile करना है, नहीं करे। so simple, make life simple instead of expectations। you are expecting so much, then you all are feeling bad that they are not giving it, or we don't know how to handle। so Rajesh, it is very important to understand कि what is it that I want from XYZ or from myself। अगर वो क्लियर हो गया ना राजेश जी, तो ये सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी, बहुत जिंदगी क्लियर हो जाएगी। बहुत क्लियर हो जाए। बहुत बहुत clear, सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल फंडा है ये। पर बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। बीइंग लाइक दिस। तो ये इम्प्लीमेंट करना खुद पे, ऐसे लगता है कि अरे निर्मला पागल है, पता नहीं क्या बोल रही है, बट इट इज नॉट ट्रू। इम्प्लीमेंट इट एंड यू विल सी द एंड चेंज। यू हैव टू इम्प्लीमेंट, आपको ही करना पड़ेगा, इसमें कोई। मैं 10 बार बोल सकती हूँ कि राजेश जी ऐसे आपके बीवी के साथ बिहेव करो या ऐसे इसके साथ बिहेव करो। यू अंडरस्टैंड? सो यू बट करना आपको, यू हैव टू स्टार्ट। वो करना आपको ही पड़ेगा, आपको रियलाइज करना पड़ेगा इनिशियली जो भी इश्यूज हो रहे हैं, तो यू हैव टू रियलाइज। इमोशनल है, सोशल प्रॉब्लम्स है, स्पिरिचुअल इश्यूज है, खुद को अंडरस्टैंड करो कि क्या लैक हो रहा है मेरे में। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरे बच्चे मेरे को वापस जवाब ना दे। यू अंडरस्टैंड? बट देयर इज समथिंग दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो यू नीड टू गो टू द बॉटम ऑफ द इश्यू, एंड बॉटम ऑफ द Right. इश्यू आएगा जब हम खुद के साथ अकेले बैठेंगे, अकेले बैठेंगे। करेंगे, नोट डाउन योर पॉइंट्स एंड देन एंड बी रियलिस्टिक। जब आप नोटिंग डाउन कर रहे हो, ऐसे नहीं कि हवा में बातें कर रहे हो, यू नो, रियल बन के लिखो कि True, मेरे true, क्या इश्यू है, true. फिर ही ये Very- सच्चा सॉल्व होगा। वेरी नाइस। तो बहुत बढ़िया डिस्कशन निर्मला के साथ था, और टाइम भी हमारा हो रहा है, तो अगर किसी ऑडियंस का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो अनम्यूट करें और पूछ सकते हैं। तो निर्मला ने बहुत सारी चीजें बताई, और एक जो समरी थी कि आप अपने आप से बैठें और लाइफ को सिंपल करें, रियलाइज करें जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, और बहुत दौड़ भाग नहीं करना है। जो प्रॉब्लम से स्टार्ट आपके साथ हुई है वो आपको ही रिजॉल्व करनी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, और रीजन कहाँ पे है उसका आपको पता लग जाएगा डेफिनेटली। यस मैम, प्लीज। Yeah, sir, I just wanted to add one thing. हाँ। कि जो इरमला ने कहा कि बैठो and all that, I agree totally with her about everything. जो सबका प्रॉब्लम आजकल चल रहा है, अगर हर इंसान सिर्फ जैसे पहले बूढ़े बोलते थे ना कि एक 2 मिनट सोच के बोलो, तो 3, 4, 5 अगर गहरी सांस तुम
उस मोमेंट में, किसी भी मोमेंट में, चाहे तुम बच्चे के साथ हो, मियाँ के साथ हो, डीलर के साथ हो, नौकर के साथ हो, किसी के साथ भी, बिफोर टॉकिंग इफ यू टेक अ फ्यू ब्रेथ्स, तुम्हारा माइंड खुद ब खुद काम हो जाता है। एंड जो आंसर आप उसको देते हैं या जो भी रिएक्शन आपका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम द इमीडिएट रिएक्शन। Very good. So I that agree. is only one point. Don't you agree, Nirmala? Yeah, very. 100%. That is the reason we need awareness, mindfulness before we say Exactly. something. Those seconds, Exactly. understand what you are saying, how you are reacting, and then you react. Definitely, the reaction will only become different. Very good. Absolutely. Yeah. So it's a very simple funda. सिर्फ 5 सांस गहरी गहरी ले लो and things will change automatically, and then you can go do whatever you want. Very True, true, Naseem, very true. ये जो पॉज है ना, 2 सेकंड का भी पॉज है ना, वो पॉज में सारी चीजें आपकी चेंज हो जाती है, आपका प्रोसेस चेंज होता है, आपका रिएक्शन चेंज होता है। ओके, सो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो वो पॉज लेना नहीं, अगर हम भूल जाते हैं या कहीं नहीं ले पाते हैं तो वो इमीडिएट अब हम ब्लास्ट कर जाते हैं, कुछ भी ऐसा रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब आप पॉज लेते हैं, चाहे आप शांत होते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो आप रियलाइज कर लेते हैं, वो रियलाइजेशन का मोड होता है। तो बहुत बढ़िया, और काफी सारा डिस्कशन था, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन था। तो थैंक्स निर्मला यहाँ पे आने के लिए, और इतना अच्छा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और प्लीज हम आपको आगे भी इनवाइट करेंगे एंड वी विल डिस्कस, और अलग अलग ग्रुप्स के साथ डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली हम और भी सेशंस में आपकी जो ट्रिक्स और टिप्स है इसको इंट्रोस्पेक्शन के लिए हम और भी लोगों तक पहुंचाएंगे, और बाकी लोग भी हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करें। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 4 बजे साथी राह दिखाना हम करते हैं, और उसमें अलग अलग फील्ड के जो भी गेस्ट होते हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनके साथ डिस्कस करते हैं। और दिन का जो ये इंट्रोस्पेक्शन का घंटा है, 1 घंटा, जो 23 घंटा आप काम कर रहे हैं, तो अपने बारे में कुछ बात करें, लोगों के साथ इंटरेक्शन करके अपने बारे में हम अपने आप को सीखें, समझें। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो हम लोग मिलते रहेंगे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, साथी राह दिखाना, Thank you. नए गेस्ट के साथ में। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।